بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول کے مہینے میں ماں باپ کی قبر کو جنت کا باغ بنانا چاہتے ہو تو قرآن کی یہ ایک سورت ضرور پڑھنا، مرحوم والدین خوش ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی اپنے مرحوم والدین کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے بارے میں سنجیدگی سے سوچا ہے؟ ہمارے دلوں میں والدین کی محبت رچی بسی ہوئی ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ثواب مرحوم والدین کو پہنچانا اس کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ خاص طور پر 3 صورتیں ایسی ہیں کہ ان صورتوں کی تلاوت اور ثواب ایصال کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، یا اگر پہلے ہی مغفرت ہو چکی ہو تو ان کے درجات مزید بلند فرما دیتا ہے۔ کیا یہ خیال آپ کے دل کو جنبش نہیں دیتا کہ چند منٹ کی تلاوت آپ کے والدین کے لیے ہمیشہ کی راحت بن سکتی ہے؟ ناظرین محترم، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو شخص قرآن پاک کی ان 3 صورتوں کو یکجا پڑھ کر ثواب اپنے والدین کو پہنچاتا ہے، وہ والدین کے لیے رحمت اور بخشش کا وسیلہ بنتا ہے۔ اگر اللہ نے پہلے ہی ان کی مغفرت کر دیا تو یہ عمل ان کے درجات میں اضافے کا سبب بنتا ہے۔ یہ والدین کے لیے ایسا تحفہ ہے جس کی مثال نہیں۔ ایک لمحے کو روک کر سوچیں، کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے لیے ایسا عمل کرے؟ اگر ہاں تو ہمیں آج ہی یہ نیکی اپنے والدین کے لیے کرنی چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں بھی ان کو اپنائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں والدین کے احترام اور ان کے لیے دعاؤں کی اہمیت سکھاتی ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور دریافت کیا کہ ان کی والدہ کے انتقال کے بعد کون سا صدقہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی پلانا بہترین صدقہ، چنانچہ انہوں نے کنواں کھدوایا اور اپنی والدہ کو اصالِ ثواب کیا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین کے بعد بھی ان کے لیے دعائے استغفار، ان کے عہد کو پورا کرنا اور ان کے رشتہ داروں اور دوستوں سے حسن سلوک کرنا اولاد کی ذمہ داری ہے۔ کیا یہ واقعات ہمارے دلوں کو نرم نہیں کرتے اور ہمیں ترغیب نہیں دیتے کہ ہم بھی قرآن پڑھ کر ان کے لیے دعا کریں؟ محترم ناظرین، اسلام میں والدین کا مقام بہت بلند ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت اور ان کے لیے دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ والدین خواہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں یا زندہ ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت، صدقہ جاریہ اور نیک اعمال کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچانا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ خاص طور پر قرآن پاک کی تلاوت والدین کی مغفرت اور ان کے درجات کی بلندی کا بہترین ذریعہ۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایسی تسبیح پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تلاوت کی جائے تو قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جنت میں سونے کا محل مل جاتا ہے۔ تو اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ اولاد ہونے کی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے آپ اپنے والدین کے گناہ معاف کروا سکیں اور ان کو قبر کے عذاب سے نجات دلواتے ہوئے جنت میں سونے کے محلات کا ان کو حقدار بنوا سکیں۔ ناظرین، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے ارشاد فرماتا ہے کہ جو آپ کا امتی یہ عمل کرے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، اس کے والدین کے پچھلے گناہ معاف کروں گا۔ میرا امتی دوبارہ یہ عمل کرے گا تو اللہ فرماتا ہے میں اس پر سلامتی نازل کروں گا اور ان کی اولادوں کو سلامتی اور مرتے وقت آسانیاں عطا کروں گا، جنت میں محل عطا کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سجدہ شکر ادا کیا، کیونکہ اس عمل سے جہنم سے دوری ہوتی ہے اور جنت پاس آ جاتی ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ محترم ناظرین، عبداللہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک شخص آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نوجوان پر سکرات موت کی حالت ہے، ان کو کلمہ پڑھنے کو کہا جاتا ہے مگر اس کی زبان نہیں چلتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وہ زندگی میں کلمہ نہیں پڑھتا تھا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ پڑھتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زندگی میں پڑھتا تھا تو موت کے وقت کس چیز نے اسے روک دیا؟ اتنا فرما کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، آپ سب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ چل پڑے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جوان کے مکان پر تشریف لے گئے اور فرمایا اے لڑکے کہہ لا الہ الا اللہ۔ لڑکے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نہیں چلتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی نافرمانی کے باعث۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تیری ماں زندہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی والدہ کو بلایا، فرمایا کہ کیا یہ تیرا لڑکا ہے؟ بڑھیا نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آگ کا دہکتا ہوا کوئلہ لاؤ اور تم سے کہا جائے کہ لڑکے کو معاف کر دے ورنہ تیرے سامنے آگ میں تیرے لڑکے کو ڈال دیا جائے گا تو تم کیا کرو گی؟ بوڑھی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں معاف کر دوں گی۔ سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سن لیں، دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ سخت جہنم کی آگ۔ کیا اپنے لڑکے کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ اور اس کے دہکتے ہوئے انگاروں میں جلتا ہوا پسند کرے گی؟ بڑھیا کی ممتا جوش میں آ کے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ بناتی ہوں کہ میں نے اپنے لخت جگر نور نظر کو معاف کر دیا اور اس سے راضی ہو گئی ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جوان سے کلمہ پڑھنے کو فرمایا، فوراً اس کی زبان کھل گئی اور پورا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ میری وجہ سے ایک لڑکا جہنم کے دردناک عذاب سے نجات پا گیا۔
नाज़रीन कराम, जान लीजिए कि कुरान पाक की बताई जाने वाली 3 सूरतों की फजीलत बहुत ही ज़्यादा है, और जब कोई मर्द या औरत अपने मरहूम वालिदैन के लिए कुरान पाक की 3 सूरतें पढ़कर उनको इसाले सवाब करता है तो उन्हें खुद भी उन सूरतों की तिलावत के सबब बेहतरीन अजर व सवाब हासिल होता है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक में ऐसी सूरत भी मौजूद है जिसे कुरान का दिल कहा गया, यानी सूरह यासीन। सूरह यासीन की तिलावत करो, रूहानी असरात का तज़किरा करते हुए याद रखें कि ये सूरत कुरान की मक्की सूरत है जिसमें अल्लाह की वहदानियत, नबूवत की सदाकत और क़यामत का यकीन पर असर अंदाज में बयान हुआ है। ये सूरत मुख्तसर और पुरअसर जुमलों के जरिए दिलों को झंझोड़ती है। अगरचे बाज़ लोगों ने इस सूरत के बारे में मखसूस फ़ज़ाइल मंसूब किए हैं, उलमा ने वाज़ेह किया है कि ऐसी रवायात मोतबर नहीं, बावजूद इसके कि इस सूरत की तिलावत बज़ाते खुद कुरान की अज़मत और आखिरत की याद दहानी कराती है। क्या आपने कभी रात के पुरसकून लम्हात में सूरह यासीन तिलावत करके अपने वालिदैन के लिए बख्शिश की दुआ मांगी है? ये अमल ना सिर्फ उनके लिए रहमत का बाइस हो सकता है बल्कि आपके अपने दिल को भी सुकून और उम्मीद से भर देता है। इसाले सवाब की फजीलत को मजीद वाज़ेह करने के लिए आप तसव्वुर करें कि एक बेटा तन्हाई में बैठा कुरान खोले अपने मरहूम वालिदैन की याद में अपने आप पर फिदा हो रहा है। वो अल्फाज जो उसके लबों से निकलते हैं या उसके वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए आसमानों की तरफ उठते हैं। क्या इस मंजर का तसव्वुर आपके दिल को नरम नहीं करता? क्या ये सवाल जहन में नहीं आता कि हम ये अमल क्यों ना करें? कुरान पाक की 3 ऐसी सूरतें हैं कि अगर उनको एक साथ पढ़कर मरहूम वालिदैन को इसाले सवाब किया जाए तो मजमूआ सवाब का इसाले वालिदैन के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। इस मौका पर मोहब्बत भरे अंदाज में कहें कि अपने वालिदैन को कुरान का नजराना पेश करें और अल्लाह से उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। कभी तंबीह के अंदाज में याद दिलाएं कि हमारी ज़िंदगी मुख्तसर है, वालिदैन की खिदमत और उनके साले सवाब में देर ना करें। और कभी नसीहत के तौर पर कि ये तीनों सूरतें पढ़कर सवाब पहुँचाना वालिदैन के लिए ऐसी रोशनी है जो उनकी कब्र को मुनव्वर कर देती है। नाज़रीन मोहतरम, सूरतुल मुल्क अल्लाह ताला की बादशाही, कुदरत और रबूबियत पर मुश्तमिल है। इस सूरत में इंसान को उसकी हकीकत याद दिलाई जाती है और बताया जाता है कि ज़िंदगी और मौत का निज़ाम अल्लाह के इख्तियार में है। मुस्तनद रिवायात में आया है कि ये सूरत अपने पढ़ने वाले की शिफात करती है और कब्र के अजाब से निजात का जरिया बनती है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान की ये एक सूरत जिसमें 30 आयात हैं एक शख्स के लिए सिफारिश करती है यहाँ तक कि उसे बख्श दिया गया। वो सूरत सूरतुल मुल्क है। मजीद फरमाया गया कि जो इस सूरत को हर रात पढ़ता है अल्लाह ताला उसे कब्र के अजाब से महफूज रखता है। क्या ये फजीलत सुनकर हमारे दिल में ये ख्वाहिश नहीं जागती कि हम उसे अपने वालिदैन के लिए पढ़ें? जब एक बेटा या एक बेटी रात सोने से पहले खामोशी से दिल ही दिल में सूरत मुल्क की तिलावत करती है, इस तरह से कि सूरत पढ़ते वक्त उसकी हर आयत के अख्ताम पर वो अपने वालिदैन की मग़फ़िरत और अज़ाब कब्र से बचाव की दुआ करती है। इस दौरान वो खुद से सवाल करती है कि क्या मेरी मुख्तसर सी कोशिश मेरे वालिदैन की कब्र को बाग़ जन्नत बना सकती है? और फिर ईमान और यकीन से अपने रब से इल्तिजा करती है। तो नाज़रीन कराम, यकीन करें कि अपने फ़ौजशुदा वालिदैन के लिए उसकी मोहब्बत और अज़म को देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी कोशिश को रायगाह नहीं जाने देता। आलम बरज़ख में लोग हैरान होते हैं कि हमारे फ़लाँ साथी का दर्जा बुलंद कैसे हो गया, और ऐसे वालिदैन खुद भी खुशगवार हैरत में मुब्तला होते हैं कि हमारा दर्जा अचानक क्यों कर बुलंद कर दिया गया। फिर उनके इस्तफ़सार पर फ़रिश्ते उन्हें बताते हैं कि आपके फ़लाँ बेटे या फ़लाँ बेटी ने आपके लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुज़ूर सदके दिल से दुआ की थी, जिसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल फरमा लिया और इसी तरह से आपका दर्जा बुलंद कर दिया गया। तो वहाँ मौजूद करीबी साथी उन पर रश करते हैं कि अल्लाह ने उन्हें ऐसी नेक औलाद से नवाजा है जो उनकी वफ़ात के बाद उनके लिए दिल की गहराई से बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ कर रहे हैं, जिनके सबब अल्लाह ताला आलम बरज़ख में उनके दर्जात बुलंद करता ही चला जाता है। नाज़रीन कराम, दुआ तो हम वैसे भी अपने मरहूम वालिदैन के लिए कर सकते हैं, लेकिन जब हम कुरान पाक की इन 3 सूरतों की तिलावत करने के बाद अल्लाह के हुज़ूर दुआ के लिए दस्ते अदब बुलंद करते हैं तो फिर असल कुरान की ये सूरत भी इस कार खैर में गवाह हो जाती है और अल्लाह के हुज़ूर सिफारिश करती है, या अल्लाह पाक, तेरा ये बंदा तेरे हुज़ूर दिल की गहराइयों से अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआएं कर रहा है। इसकी दुआ को कबूल मंजूर फरमाकर उसके वालिदैन की बख्शिश फरमा दे। लिहाजा ऐसी दुआएं शर्फ़ कबूलियत हासिल कर लेती हैं। मोहतरम नाज़रीन, इस सूरत की तिलावत को अपना मामूल बनाइए और इसे अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब बनाएं। अब जानते हैं कि तीसरी सूरत कौन सी है जिसकी तिलावत मरहूम वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए अजीम तोहफ़ा साबित हो सकती है। नाज़रीन मोहतरम, कुरान पाक की एक ऐसी सूरत मुबारक जिसकी सिर्फ एक बार तिलावत करने से ही एक तिहाई कुरान की तिलावत का सवाब अल्लाह ताला अता फरमा देता है। जी हाँ नाज़रीन, सूरतुल इख़लास एक मुख्तसर सूरत, लेकिन इसका पैगाम इंतहाई जामे और अज़ीमुश्शान है। इसमें अल्लाह ताला की वहदानियत, समद और बेनियाज होने का ऐलान है। सही रिवायात में आता है कि सूरत इख़लास कुरान की एक तिहाई के बराबर है और इसे बार बार पढ़ना अल्लाह ताला की मोहब्बत का बाइस बनता है। एक रिवायत के मुताबिक एक सहाबी हर नमाज में सूरत इख़लास पढ़ते थे। किसी ने उनसे उसकी वजह पूछी तो उन्होंने जवाब दिया, मैं इस सूरत से मोहब्बत करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत का हकदार बना दिया। इस वाक़े से मालूम होता है कि सूरत इख़लास की तिलावत ना सिर्फ सवाब का बाइस है बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और जन्नत की ज़मानत भी बन सकती है। क्या ये इल्म हमारे दिल को नहीं झंझोड़ता कि हम अपने मरहूम वालिदैन के लिए भी इस सूरत का तोहफ़ा पेश करें? अब तसव्वुर कीजिए कि एक नौजवान रात के आखिरी पहर उठता है, वज़ू करता है और तहज्जुद के दौरान सूरत इख़लास की तिलावत करता है, कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ता है, तो उसके दिल में अपने वालिदैन की याद ताज़ा हो जाती है और वो दिल ही दिल में कहता है, या रब, ये अजर मेरे वालिदैन को अता फरमा, इन्हें माफ़ फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा।
यकीन कीजिए कि वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ के लिए इससे बेहतरीन लम्हात और नहीं हो सकते। अमल निहायत ही आसान और मौसर हो सकता है। अगर आप चाहते हैं आपके वालिदैन की आखिरत संवर जाए तो इन 3 सूरतों की तिलावत को मामूल बना लें, कभी जज़्बाती अंदाज़ में तो कभी सरगोशी के अंदाज़ में। ये सूरतें वालिदैन के लिए तोहफ़े का गुलदस्ता हैं, जो इनकी रूह को खुशी और सुकून पहुँचाता है। दुनिया की मसरूफ़ियात में हमें गाफ़िल ना हों, अपने वालिदैन के लिए वक़्त निकालें और कुरान के इस तोहफ़े को उन तक पहुँचाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका से साबित है कि जब औलाद अपने वालिदैन के लिए बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ करना छोड़ देती है, तो अल्लाह ताला की रहमत भी ऐसी औलाद से अपना मुँह मोड़ लेती है। जैसे उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल है कि अगर हमारे दिल पाक होते तो हम कभी कुरान से सैर ना होते। और हज़रत इब्ने मसूद का ये फ़रमान है कि जो शख़्स कुरान की कोई सूरत पढ़ता है और उस पर अमल करता है, क़यामत के दिन वो सूरत उसकी सिफ़ारिश करेगी। आप इन अक़वाल के साथ ये सवाल कर सकते हैं कि अगर कुरान की एक सूरत हमारी सिफ़ारिश कर सकती है, तो क्या हमसे अपने वालिदैन के हक़ में क्यों ना पढ़ें? हम इसे अपने वालिदैन के हक़ में क्यों ना पढ़ें? एक और ईमान अफ़रोज़ वाक़े में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा का ज़िक्र आता है कि इब्तिदा में वो इस्लाम कबूल नहीं कर रही थी, मगर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दिन-रात उनके लिए दुआ करते रहे और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दुआ की दरख्वास्त की। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उनके दिल को नरम कर दिया और वो ईमान ले आए। इस वाक़े से पता चलता है कि ये दुआ वालिदैन के लिए कितनी मौसर हो सकती है। अगर हमारे वालिदैन ईमान की दौलत से मालामाल होकर दुनिया से गए, तो उनके दर्जात की बुलंदी के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमारी दुआएं और तिलावत उनकी मग़फ़िरत का ज़रिया नहीं बन सकती? नाज़रीन इकराम, सूरत मुल्क में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिसने मौत और ज़िंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हें आज़माए कि तुम में कौन बेहतर अमल करता है। ज़मीन और आसमान की तख्लीक के दिलकश मनाज़िर बयान किए जाते हैं। सूरत इख़लास में बताया जाता है कि अल्लाह एक है, वो बेनियाज़ है, ना वो किसी से पैदा हुआ और ना कोई उसका हमसर है। ये दोनों सूरतें हमारे अक़ीदे की इस्लाह करती हैं, और जब हम ये सूरतें पढ़कर सवाब वालिदैन को भेजते हैं, तो गोया हम उनके लिए ईमान और यकीन का तोहफ़ा भेजते हैं। लिहाजा कुरान पाक की ये 3 सूरतें पढ़कर अपने वालिदैन को इसाले सवाब करना उनकी बख्शिश और मग़फ़िरत और दर्जात की बुलंदी के लिए एक अज़ीम तोहफ़ा है। अगर हम अपने वालिदैन के लिए जन्नत के बाग़ात सजाना चाहते हैं, तो इन सूरतों का तोहफ़ा उन्हें ज़रूर भेजें। हमेशा याद रखें कि दुनिया की कोई चीज़ वालिदैन को इतना खुश नहीं करती जितना हमारे पढ़े हुए कुरान का तोहफ़ा। कबीरा गुनाह इन बड़े गुनाहों को कहा जाता है जिन पर कुरान और हदीस में सख्त वईद और अज़ाब की धमकियाँ आई हैं, जैसे जहन्नम, लानत या अल्लाह का अज़ाब का ज़िक्र। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि कबीरा गुनाह वो हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने जहन्नम, लानत या सख्त अज़ाब का ऐलान फरमाया। मशहूर कबीरा गुनाह शिर्क, नाहक कत्ल, वालिदैन की नाफरमानी, जादू, झूठी गवाही, चोरी, सूद खाना, यतीम का माल खाना, नाहक माल खाना, रिश्वत, जुल्म, वादा खिलाफी, नमाज तर्क करना, बगैर उज़र के रोज़े तोड़ना, नाप तोल में कमी करना। कुरान में कबीरा गुनाहों का अंजाम। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है, तो हम तुम्हारी छोटी बुराइयां मिटा देंगे और तुम्हें इज़्ज़त वाली जगह दाखिल करेंगे। इस आयत से मालूम होता है कि गुनाह कबीरा आखिरत में इंसान के लिए बड़ी रुकावट बनते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें सबसे बड़े गुनाहों की खबर ना दूं? सहाबा ने कहा, जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के साथ शिर्क करना, वालिदैन की नाफरमानी करना, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना। कबीरा गुनाह इंसान के साथ कब्र तक जाते हैं। हदीस में वाज़ेह ज़िक्र है कि नमाज छोड़ने वाले की कब्र तंग कर दी जाती है। सूद खाने वाला क़यामत तक खून की नदी में डूबा रहेगा। ज़नाकार की कब्र में आग के गड्ढे खोले जाते हैं। झूठ बोलने वाले की कब्र में फरिश्ते हथौड़े से सर कुचलते हैं। ये तमाम तफसीलात सही बुखारी और मुस्लिम की मुख्तलिफ रिवायात में आई हैं, जिन्हें अज़ाबुल क़ब्र के अब्वाब में जिक्र किया गया। आखिरत में कबीरा गुनाहों का साथ जाना। गुनाह आखिरत में भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। शिर्क करने वाला अगर तौबा ना करे तो हमेशा जहन्नम में रहेगा। कत्ल नाहक पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कातिल जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हालांकि उसकी खुशबू 40 साल की मुसाफत से आती है। सूद के बारे में कुरान में आया है कि जो लोग सूद खाते हैं क़यामत के दिन ऐसे उठेंगे जैसे शैतान ने छूकर पागल कर दिया हो। यतीम का माल खाने वाले के बारे में कुरान कहता है कि वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और वो जल्द जहन्नम में जाएंगे। अहले ईमान अगर कबीरा गुनाह करें और बगैर तौबा मर जाएं तो वो जहन्नम जाएंगे, लेकिन हमेशा नहीं रहेंगे, क्योंकि तौहीद वालों को अल्लाह एक दिन माफ़ फरमा देगा। अलबत्ता कबीरा गुनाहों का हिसाब सख्त होगा और क़यामत के दिन वो गुनाह उनके अमाल नामे में साथ आएंगे। कबीरा गुनाह कब्र में अजाब का सबब बनते हैं। ये गुनाह इंसान के साथ मरने के बाद भी रहते हैं। आखिरत में ये गुनाह सबके सामने ज़ाहिर होंगे। उनसे बचने के लिए तौबा, इस्तिग़फ़ार, नेक अमाल और अल्लाह की रहमत की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि हमारी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा।